All right, we have with us the rising stars of not just Gadar 2, but industry now, I can say, because the film is doing so well. And I'm really personally very happy for Utkarsh and for Simrat as well. Utkarsh, because I know his father really well ever since I was in Mumbai. I have known him and have met him multiple times. And I was just kind of hoping that his film would do really well because heart and heart, I know that he's a very, very nice person beyond, everything else about filmmaking and all of that. But एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी होता है एक अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए. So Utkarsh and Simran, welcome to Conversations. That's the name of my show. Thank you, Thank you, Ron. Rana. Thank you for having us. Yeah, and I was quite excited to talk to you, Utkarsh. And both of you, I want to ask you, how has life changed after Gadar 2? Well, लाइफ चेंज के हिसाब से मतलब ऑब्वियसली फिल्म इतनी बड़ी हिट है तो पीपल डू रिकग्नाइज यू वेरी इजीली. इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस. अरे वाह, that's a good problem to have. Yeah, that's a good Yeah. problem to have, but yeah, I guess. Um, but उससे भी ज्यादा क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड हो गई है कि जब पब्लिक आप पे इतना प्यार बरसाती है तो यू हैव टू बी इवन मोर रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू गिव देम बैक द नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम या बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है ना, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड. प्रेशर नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब और ऐसे ही डिलीवर करते जाना है. ऑब्वियसली फिल्म्स ऊपर नीचे सब होती हैं, वो तो नॉर्मल है. बट अगर अच्छे इंटेंशन से बनाएंगे तो हमेशा ऑडियंस अप्रिशिएट करेगी. दैट्स द ओनली थिंग. Simrat, what about you? You just suddenly came and your first film became so big, and something similar happened with Amisha Patel also when Kaho Na Pyare came. And Yeah. like you are experiencing similar kind of phenomenon. तो Yeah. कैसे क्या हो रहा है लाइफ में फिलहाल? See, many things changed, but nothing changed for me personally. The things changed that people now, they know me. Wherever I go, they call me Muskan. They don't even know my name. They call me by the name of Muskan. So they're like, Muskan ja rahi hai, Muskan ye wo karke. And I think the success has only taught me that I have to be even more grounded because this is the love I have always craved of. So now I'm getting all kinds of love and prayers and wishes. So it's like, oh my God, I have to work even harder now. Okay, but when I saw you on screen, and then of course you were very big on social media like before as well, right? Instagram pe you had a lot of followers and stuff. I like had that. 7 lakh, yeah. It's a big number, right? So did you always want to become an actress though, or like most actresses, what happens is that one thing leads to another, and then kind of ho gaya. When I started in 2017, that was the time I never wanted to become an actor. I never dreamt of कि बड़े होके actor बनना ही है. But it just happened that I got my first Cadbury ad from Instagram at that time. So yeah, Okay. so it started with my Cadbury ad, and then all the coordinators had my number. I started getting calls for auditions here and there. Then I got my first call for South movie. South movie happened. So in my case, actually, my parents were more interested in the industry than me. It's always reverse, that the kids are interested and parents मना करते हैं, but in my case my mom dad were really supportive. तो अब क्या है? अब they are more interested, or now you are equally interested now that you've seen success? Now I'm like, I can't think of anything else. I breathe, I live like acting and everything. So yeah. So I think that was meant to happen for me, and it happened. Like destiny was like, no beta, this is the only job you'll ever do in your life. So it took me away from everything else. Nice. Both of you, जब आप लोग गदर 2 शूट कर रहे थे तो I know a lot of social media पे like lot of leaks हो रहे थे, and like buzz create हो रहा था. Of course you had a very strong marketing campaign also, but I know तुमको बहुत बार पूछा होगा ये सवाल लोगों ने, but did you imagine this kind of success, or did you imagine कि हाँ success होगी, or it will be just another film which will be a hit? I think पूरे टीम से सबसे ज्यादा श्योर थे अनिल सर. अच्छा. He was the only one who said कि मूवी 500 करोड़ करेगी और उसको क्रॉस करेगी 500 को. And we were like कि सर थोड़ा ज्यादा है ये. He's like कि तुम लिख के लो ये 500 को भी क्रॉस करेगी. He was the only one. उत्कर्ष उत्कर्ष हम लोग को लगा था हाँ शायद maybe it can do good.
But No, हाँ. I was a little more optimistic than you. oh, ये Uh, होगा. Well, he was there. He was part of first film also, ना. yeah. तो Yeah. So I knew, see, script जब हमारी लॉक हुई, इतने एक तो सालों बाद एक ऐसा आइडिया आया, एंड स्क्रिप्ट लेवल पे वी न्यू कि भाई ये गदर का नाम को एनकैश नहीं करेगी, ग्रो करेगी उसको. एंड जब कहानी आई तभी लगा था मुझे कि हाँ ये हिट होगी. अब उस टाइम पे जब पिक्चर लॉक हुई थी, दैट वाज 2021, एंड उस टाइम सिनेमा का हाल आपको पता ही है क्या था, एंड what kind of budgets films were getting, what was happening in the industry, outside of the industry. So all that would make anyone feel कि भाई film hit होगी, but ऐसा नहीं. But I was a little more optimistic than that. I felt कि it will be one of the bigger hits. I did not feel कि 500 थोड़ा सा सपना लगता था. But could you anticipate ever कि गदर 1 से ज्यादा कमाई करेगी, like in today's time? In today's time, that is difficult to imagine. But जब फर्स्ट डे शो देखा ना मैंने पब्लिक के साथ, तब मेरे को लग गया था कि हाँ ये अब पक्का ये कुछ कमाल करेगी. तो मुझे ये बताओ कि इतना टाइम क्यों लगा, 20 साल क्यों लगे गदर 2 को आने में? क्योंकि हमारा इंटेंशन उसको एनकैश करना था ही नहीं ना. सी देयर वर मोर फेवरेबल कंडीशंस टू मेक अ सीक्वल, मोर फेवरेबल आई वुड से years टू मेक अ सीक्वल. बट जब तक राइट कहानी नहीं आएगी तब तक हम ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस का इमोशन इससे बहुत स्ट्रांगली जुड़ा है. इफ यू अगर आपने उनको कुछ परोस दिया ऐसा जिससे वो खफा हो जाए, तो मतलब दे विल डू व्हाट दे डू आफ्टर समटाइम्स अ क्रिकेट मैच. पत्थर फेंकते हैं, ये करते. पब्लिक उस लेवल तक आउटरेज हो सकती थी इफ थिंग्स वेंट रॉन्ग. तो अब गदर 3 आने में कितना टाइम है? योर डैड इज नॉट देयर टू आंसर ऑल दीस क्वेश्चंस, सो आई एम पुटिंग इट टू यू. सी आई वुड से गदर 3 को भी अच्छी स्क्रिप्ट जब तक नहीं आएगी हमारे पास उतना ही टाइम है. जब अच्छी स्क्रिप्ट आएगी गदर 3 आ जाएगी. ऑलराइट. अच्छा सुनो, अभी मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ. जब तुम्हारी पहली फिल्म आई थी जीनियस, ओके, तो मैं मुंबई में था. आई गॉन टू वॉच द फिल्म एंड आई मेट योर डैड इन द इंटरवल आल्सो एंड आई वाज डूइंग द रिव्यू फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया. तो जैसे ही मूवी खत्म हुई, आई स्टार्टेड राइटिंग द रिव्यू वहीं थिएटर्स में बैठ के, फन रिपब्लिक में था. एंड देन आई पोस्टेड द रिव्यू और रिव्यू आ भी गया इमीडिएटली ऑनलाइन. नेक्स्ट डे पेपर में आने वाला था. तो अनिल जी का मुझे फोन आया रास्ते में. उन्होंने पढ़ा नहीं था रिव्यू, but he just wanted to know कि कैसी लगी, and he knows me from before and all. So I told him very frankly कि सर फिल्म में थोड़े से flaws हैं, and you know ये है वो है. तो then he asked me कि ठीक है रिव्यू आ गया. मैंने बोला आ चुका होगा, अभी आप देख सकते हैं. मैंने बोला मैंने 2 स्टार दिए. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तूने मेरे बेटे का करियर लॉन्च होने से पहले ही खत्म कर दिया. तो आई वाज लाइक सर ऐसी बात नहीं है, अगर आप पढ़ोगे रिव्यू इनफैक्ट तो मैंने आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा ही लिखा है. फिल्म में मेरे ख्याल से जो जो प्रॉब्लम थे मैंने लिखा है, बट आई रीड आउट व्हाट आई रोट फॉर यू इन दैट रिव्यू इन टाइम्स ऑफ इंडिया, व्हिच इज स्टिल देयर, यू कैन रीड आउट. I wrote, for the first time, Utkarsh delivers on many counts with his boyish charm, even as the film's wobbly script falters repeatedly. That was a line kind of that formed the crux of your performance, and then there's a lot of other things. Yeah. तो ही साइड के हाँ भाई मेरी फिल्म को तो गदर एक प्रेम कथा को भी गटर एक प्रेम कथा बोला था, बट यू नो इतनी बड़ी हिट हो गई. मैंने बोला सर देखिए अगर हिट होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट यू नो रिव्यू वाइज क्रिटिकली ये पॉइंट्स मैंने डाले हैं तो आप पढ़ लेना. और मुझे तो देन ही सेड कि नहीं नहीं ठीक है तुमने अपना काम किया, अच्छी बात है, एंड इट काइंड ऑफ एंडेड. एंड आई फेल्ट बैड, लाइक लिटरली सी अल्टीमेटली ऑल ह्यूमंस. तो मुझे बहुत खुशी है कि यू गॉट दैट सक्सेस नाउ एंड ऑल दैट, यू नो. बट रिव्यूज अभी भी अगर देखो तो गदर 2 के तो ऑफ कोर्स अच्छे हैं रिव्यूज, आई एम नॉट सेइंग, बट देयर विल बी क्रिटिकल यू नो व्यूज एंड ऑल दैट. तो हाउ डू यू बोथ डील विद such criticism that comes along? See, that is going to come every time in your life, at every step, no matter what. So uska you have to just ignore it. Definitely, is there something good as a feedback, you should definitely take it, learn from it, improve it. But if sometimes so have you read any reviews? Have you got like taken anything or kind of ignored कि नहीं ये गलत लिखा है, ऐसे नहीं, हमने तो अच्छा किया था? देखो कुछ रिव्यूज डेफिनेटली क्या होता है कि अब आज के डेट में, आपने जब जीनियस रिव्यू की थी तब शायद इतना सोशल मीडिया रिव्यूइंग नहीं थी, मोर तब भी पेपर मेन स्ट्रीम था. तब भी आई थिंक दैट वाज लास्ट ऑफ व्हाटएवर
हाँ जो मतलब 3 साल पेपर, हो गए ना, हाँ कितने, आई थिंक 3-4 साल हो ज्यादा। गए। प्री लॉकडाउन था, प्री लॉकडाउन था, प्री तो लॉकडाउन था हाँ शायद, तब तक हाँ। पेपर वाज स्टिल मेन स्ट्रीम फॉर रिव्यूज एटलीस्ट आई वुड से। हम्म। टुडे सोशल मीडिया पे एनीवन एंड एवरीवन इज डूइंग अ रिव्यू, राइट? वो तो है। एवरीबडी हैज अ यूट्यूब चैनल वेयर दे आर रिव्यूइंग, मतलब इतना तो डायरेक्टर नहीं रिव्यू करता होगा अपनी पिक्चर, है ना? वेयर दे देखो रिव्यूइंग एवरी, आजकल आजकल सब रिव्यूअर है, सब इन्फ्लुएंसर है, और हाँ सब सेलर है। कोई मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कोई बेचने वाला, मतलब सब कुछ बेचने बिकने वाले हैं, वाली चीज ही नहीं होगी। खरीदने वाले ही नहीं बचेंगे, और They will इन्फ्लुएंस start करने के लिए reviewing फिर reviewers. बचेंगे। There are already videos where they're reviewing a review of a reviewer. So, हाँ तो I mean, all of that you have to take with a bit of intentions also. कि भाई हाँ। इस बंदे का intention क्या है ultimately? Is he doing for cinema? Is he doing for himself? ये सब हम्म। चीजें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो पर्सनली तो आज के डेट में feel all like you've been with such media channels and बड़े बड़े media channels वगैरह के साथ आप रहे हो, क्या हो गया है, ये सब चीजों की वजह से बहुत डाइल्यूट हो गया है क्रिटिक्स का हाँ एक बात जो सही है। अथॉरिटी रहती थी, हाँ बहुत पहले डाइल्यूट। जैसे जो सैंक्टिटी नहीं रही अब, हाँ पहले जो हाँ थी हाँ, वो बिकॉज वैसी यू वाली। डोंट नो आपके फेवर के लिए भी, आपके जो चीजें अच्छी लग रही हैं उसके लिए भी एग्जैक्टली बोलने वाला एक बंदा है, जो हाँ चीजें हाँ। आपको एकदम जिससे आप डिसएग्री करते हो उससे भी वो भी बोलने वाला एक बंदा है। तो राइट। आप अल्टीमेटली सुनो किसको? हम्म। अच्छा आप मुझे ये बताओ, दोनों आप दोनों या वेरी यंग, और अभी इंडस्ट्री में, हालांकि उत्कर्ष हैज सीन थिंग्स अराउंड, सिमरत यू आर क्वाइट यंग एंड न्यू, तो गदर 2 के बाद कितने ज्यादा फ्रेंड्स बन गए इंडस्ट्री में और हर जगह, जो पहले नहीं थे, जो पहले Oh, सोचते भी नहीं थे तुम्हारे बारे में। फ्रेंड्स तो नहीं, पर ऐसे बहुत सारे लोग वेल विशर्स जरूर बन चुके हैं। बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। इंडस्ट्री के नोन बड़े एक्टर्स ने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। कोई यू मैं कैन शेयर एनीथिंग दैट, अच्छा बुरा जो भी किसी ने अगर बोला हो, दोनों अ, आप शेयर कर जब सकते हो। सनी सर की पार्टी में, एक्चुअली उस दिन पूरी इंडस्ट्री आई मौजूद नो, थी, हाँ जो मुंबई में सनी हुई सर ने थी। पार्टी होस्ट की थी। सो फ्रॉम कार्तिक आर्यन टू वरुण धवन, एवरीबडी, शाहिद कपूर, सबने आके हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। एंड स्पेसिफिकली दे नेम्ड द सीन्स जो उनको अच्छे लगे, उनको ये वो, तो उन्होंने प्रॉपर हम्म। डिटेल्ड बातें की है। क्यारा अच्छा आडवाणी, अच्छा। सिद्धार्थ मल्होत्रा, एवरीबडी, बिकॉज हम्म। दे आर सीनियर्स एंड मैं उनको हमेशा देखते आ रही हूँ, तो आई वाज हैविंग अ वेरी फैन मोमेंट विद एवरीवन। एंड देन आई हम्म। रियलाइज, ओके, इवन नाउ टुडे इट्स माय डे एंड पीपल आर कमिंग फॉर मी। बट सो या इट वाज रियली गुड कि इतने बड़े एक्टर्स सब आके आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। इट इज अ वेरी हाँ बिग डील फॉर अ न्यू कमर, एंड इट राइट। इज जस्ट मोटिवेटेड मी कि ओ माय गॉड, ओके, अगर अब इन्होंने मेरा काम देख लिया, दैट मींस आई हैव डन समथिंग गुड। हाँ और उत्कर्ष, व्हाट अबाउट यू? कुछ मेरे याद तो आ रहा है कई, कि एक आध लाइन कुछ किसी ने हाँ बोली हाँ, हो? दोस्तों की बात कर रहे थे, मेरे तो कई कॉलेज के भूले बिसरे दोस्त, उन्होंने कहाँ कहाँ से नंबर, इंस्टाग्राम वगैरह कैसे कैसे कांटेक्ट किया है। तो बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब वैसे ही क्योंकि अब अच्छी हो गई, हिट हो गई फिल्म तो फोन कर रहे हैं, इसलिए नहीं, बट सब बहुत खुश हैं फॉर हम्म। फॉर मी। एंड जो इंडस्ट्री से भी बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर लाइक राकेश रोशन जी, जब हम्म। सुभाष घई जी एंड डेविड जी, जब ये सब आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं, तो यू डू तो उनको यू बोलना चाहिए सर, आप तो साइन कब करूँ, आपकी फिल्म साइन करने कब आओ? नहीं, मैं तो बोलता हूँ आप सब मेरे फेवरेट मेकर्स में से हैं। हम्म। तो बस बट एक डायरेक्टर के जहन में आना ही बहुत बड़ी बात होती है। राइट। Yeah. तो now the tangible effect of all these good things that has happened, have you guys got any offers post Gadar 2 because of Gadar 2 success? There are not any, there are many offers. There अरे are वाह, not any. But now, congratulations यार yeah, तुमको। because जितना अब जो प्यार मिला है, we have to be very specific on what we select next. Just I can't just take the name of Gadar 2 का success से अब चलो ये भी कर लो वो भी कर लो. So you've So not yeah, selected anything? no, I have. There are like things coming up. So the journey has just started now. Okay, okay. And you, Utkarsh? या पापा ने ही 2-3 फिल्में ऑफर कर दी होगी। बट क्या है कि अभी नवंबर से तो आई एम शूटिंग एनीवे, एंड ये तो गदर 2 के पहले से ही पाइपलाइन में था, तो वो उसका भी प्रॉपर अनाउंसमेंट वगैरह आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, yes, there have been a lot of talks right now, and I'm just listening, I'm taking my time, I'm not in some race that I have to win or whatever.
I just want to really do my best the next time as well. So bus just waiting for those talks to materialize, those things to materialize, and bus cheeze hongi. I'll let you know. All right, chalo, thank you. Anything else guys you guys want to say that I may have missed out के गदर 2 के बाद क्या कुछ हो रहा है लाइफ में? सी बिकॉज मैंने तो यहाँ देखी फिल्म एंड आई थिंक फर्स्ट डे फर्स्ट शो या सेकंड शो ही था, बट सनी देओल और अमीषा पटेल आए हुए थे यहाँ पे and अच्छा, you know, that there day was a only. big, Okay. yeah, I had gone, Z5 Global had I think arranged for the screening and all that, so काफी सारा बड़ा like यहाँ पे भी बहुत था. All right, so yeah, finally, so now that you guys have told me anyway that you are working on, what is the next thing that we'll see you guys on? Like you have to tell us at least that. I can't tell yaar, because nowadays you have to reveal properly na. I can't. अच्छा इतना बता No, दो but कि on big screen, na? On big screen you'll see. हाँ बिग स्क्रीन, वही मैं कह रहा था कि या बिग स्क्रीन है या ओटीटी है, वो बताओ. Yeah, that wasn't you asking about the size of the screen. It's going to be the big screen. I like Simrat because she's more forthcoming, you know, in the sense that उत्कर्ष थोड़ा सा ट्रेन हो चुका है अभी कि उसको पता है कि जर्नलिस्ट से कैसे बात करना है. Not trained, not. she is like अभी मैं कुछ तो बोल दूंगी. नहीं मैं भी नहीं बोलूंगी. But yeah, the size of the screen is the bigger one. Chalo, okay. All the best guys. Thank you so much for talking to us. Okay. And Thank you. I wish के गदर 3 जब आती हो, जब भी आएगी तो it will be even success. And please give my regards to your dad. Sure. Thank you so much. All right. Thank you. Thanks. Bye.